In this city of thousand stories, with thousand flavors, with thousand voices, there is one name that every voice knows. ताई। सुमित्रा ताई हमारी ताई है। To Indore, Thai is like an elder sister. ताई इसलिए बोला जाता है क्योंकि मराठी में बड़ी बहन मतलब एक ताई समान होती है, इसलिए उनको इंदौर की सुमित्रा ताई कहा जाता है। आदरणीय श्री सुमित्रा महाजन ताई के नाम से इंदौर में बहुत प्रसिद्ध रही है। Her name is Sumitra Mahajan, born on April 12, 1943 in Chiplun, Maharashtra, but belonging completely, entirely to Indore. Raised in a Chitpavan Brahmin family, she grew up with strong values of discipline, simplicity, and service. Life soon brought her to Indore after her marriage, a city that would not become just her home but the foundation of her public life. Here she pursued her education, earning master's degree and law degree from Indore University. Beyond academics, she is fond of reading, music, and drama. Just a reflection of a thoughtful and balanced personality. Deeply inspired by Devi Ahilyabai Holkar, she carried forward the ideas of leadership, wisdom, and compassion. Before entering into politics, she worked as a teacher and even supported families affected during emergency. Her commitment to society was never about recognition. It was about responsibility. In 1982, she took her first step into public life as a municipal corporator in Indore. Soon after, in 1984, she became the deputy mayor of the city. Her journey in national politics began with Bharatiya Janata Party. In 1989, she contested her first Lok Sabha election and won that. अहम सुमित्रा महाजन लोकसभायाः सदस्यत्वेन That victory was not just political. It was the beginning of a lifelong bond with the people of Indore. Election after election, year after year, the people trusted her again and again. She went on to become an 8-time member of parliament. A rare and historic achievement which led her to become the first woman to represent the same Lok Sabha constituency for 8 consecutive terms. A record noted in the Limca Book of Records. उनका इंदौर में विकास में योगदान काफी सराहनीय रहा है। उनके कार्यकाल में इंदौर में रीजनल पार्क का विकास हुआ, सभी तरह के रोड जो है उसका चौड़ीकरण का कार्य हुआ और जो भी उनसे पब्लिक में मिलने जाता था उनसे बिल्कुल बड़ी खुशी से मिलती थी और जो भी उनको प्रॉब्लम होती बताती थी वो अपने लेवल पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करती थी। मालूम नहीं उनसे होता था तो संबंधित मंत्री को, जो राज्य के मंत्री थे उनसे बात करती थी और पब्लिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की कोशिश करती थी। इंदौर का नाम यदि आज स्वच्छता के लिए लिया जाता है उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जिस प्रकार से लगातार 7 बार इंदौर स्वच्छ रहा उसी प्रकार उन्होंने 8 बार यहाँ के पूरे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उनका पूरा कार्यकाल के समय इंदौर की बहुत तरक्की हुई है। She also served the nation as the Union Minister from 1999 to 2004 in Vajpayee government, handling important portfolios like human resource development, communications, and petroleum. Through every role, her focus remained the same: service to the people. सबसे बड़ा अचीवमेंट तो लोगों का प्रेम है। देखो, पार्लियामेंट मेंबर जो होता है, मैं हालांकि पार्लियामेंट मेंबर के पहले भी मैं डेप्यूटी मेयर थी, एल्डरमैन भी थी, संगठन में भी अनेक पदों पर रही। मगर पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगी, पार्लियामेंट मेंबर का अर्थ जनप्रतिनिधि, कोई भी डेप्यूटी मेयर हो या कोई भी हो, जनप्रतिनिधि। तो जनता के काम करना है और प्रामाणिकता से करना है। ये 2 बातें मैंने दिमाग में रखी थी। ये बड़ा काम अब लगता है कि ग्रामीण की पूरी सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसे ही आई
या बाद में जब मालूम पड़ा कि सेंट्रल रिजर्व फंड होता है, रोड फंड, CRF बोलते हैं, तो वो उस फंड को यहाँ बड़ी मात्रा में ला करके ग्रामीण के करीब करीब सभी अच्छी छोटी बड़ी सड़कें और पुल पुलिया ये मैंने बनवा दिया करीब करीब, और थोड़ा थोड़ा बहुत तो कुछ रह जाता है। In 2014 came the defining chapter of her life. The woman from Indore had just become the Speaker of the House of the People. She was elected as the Speaker of 16th Lok Sabha, becoming the second woman in India's history to hold this position. In a house filled with strong voices and sharp disagreements, she remained calm, composed, and fair. In 2019, she chose not to contest. She stepped away quietly, the same way she had always worked, without noise, without drama, and with dignity. जब मैं रिटायर हो गई, अब उसके थोड़े पहले से ही मेरा शुरू हो गया था विचार कि लोग मुझे पूछते थे, एक तो मुझे लोग अहिल्याबाई का भक्त कहते, मगर मैं अकेली अहिल्याबाई के भक्त नहीं हूँ। पूरा इंदौर शहर, इंदौर का आसपास का ग्रामीण क्षेत्र, मालवा पूरा, ये एक प्रकार से अहिल्याबाई होलकर का भक्त है और मानते हैं उसको, माता मानते हैं। तो कई लोग इंदौर जब आते थे शुरुआत से, तो इंदौर के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे पूछते थे कि यहाँ अहिल्याबाई का तो हमने बहुत सुना, आप भी उसके भक्त हो, कि क्या देखे हम अहिल्याबाई का कुछ चरित्र, हमें जानकारी चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसी कोई बात यहाँ थी नहीं, राजवाड़ा वगैरह जनरल बातें हैं, अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित है, मगर अहिल्याबाई का चरित्र लोगों को मालूम हो जाए, अहिल्याबाई के किए हुए काम देखते देखते जैसे टूरिस्ट आते हैं तो उनको मालूम हो जाए, ऐसा कोई काम हम नहीं कर सके। महेश्वर जाओ तो महेश्वर का किला देखो, वहाँ के वस्त्र देखो, वो बहुत प्रसिद्ध, मैं ज़्यादातर महेश्वरी साड़ी पहनती थी, इसलिए ये बात एक अलग थी। तो उस समय से मन में बात थी, हमने लोकसभा में तो अहिल्या माता का स्टैचू लगा दिया था, मगर लगा कि इंदौर में कुछ होना चाहिए, और इस दृष्टि से मेरे मन में अहिल्याबाई का स्मारक बनाने की बात थी। वो स्मारक अभी बन रहा है, अब हमें गवर्नमेंट से जगह मिली, एक ट्रस्ट बनाया, मैं अकेले कुछ नहीं कर रही हूँ, और अब हम वहाँ पर अहिल्याबाई के पूरा चरित्र मालूम हो, अहिल्याबाई के किए हुए अनेक अनेक काम मालूम हो, यहाँ इसी एक योजना स्मारक के रूप में, यानी अहिल्याबाई का स्टैचू स्थापित नहीं करना है, उसके काम लोग वहाँ आएंगे तो पूरा घूमते घूमते जानेंगे कि अहिल्याबाई कैसी थी, अहिल्याबाई की न्याय पद्धति कैसी थी, अहिल्याबाई ने लोगों के लिए काम कैसे किए, अहिल्याबाई ने जो अनेक मंदिर जो मुसलमानों के द्वारा तोड़े गए थे, तो ऐसे कई मंदिर उन्होंने फिर से बनाए, ये सब कैसे किया, कई घाट बनवाए, कई धर्मशालाएं बनवाई, अनेक अनेक काम उसने, न्याय पद्धति, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम, ऐसी सब बातें। तो ऐसा एक स्मारक वहाँ बनाने की कल्पना है। सुमित्रा ताई तो क्या है, इंदौर की शान, कई साल राज करने के बाद में अभी वो वेटरन है और समाज की सेवा कर रही है, लेकिन इंदौर को उनका योगदान भूला नहीं जा सकता। She doesn't do aggressive politics and she is more focused on her work rather than publicity, and she is much more calm and stable than other political leaders. बेदाग कामकाज है उनका, आज तक कभी भी किसी भी फ्रॉड में उनका नाम नहीं आया है। Tai really inspired me with her personality and her strength, and like from Indore to Lok Sabha, it really shows that being grounded and genuine really matters. She received Padma Bhushan Award in 2021. From a teacher to a public servant to one of the highest offices in Indian democracy, Sumitra Mahajan's journey is not just political, it is deeply human. It's a story of patience over power, discipline over noise, and dignity over dominance. In the history of India, her voice will not be remembered for how loud it was,
but for how it brought order when it mattered the most.